آج ویو 360 میں خیبر پختونخوا میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کی کوششیں، کرونا وائرس کی نظر۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم سرنوں سے ان لوگوں کی بحالی شروع کریں گے۔ عوام کی معاشی مدد کے لیے امریکہ اور یورپ میں مختلف نوعیت کی پالیسیز، اور وبا کے دوران لوگ کیسی فلمیں شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جیسے جیسے لاک ڈاؤن کے ساتھ ہمارا وقت گزر رہا ہے، ہمیں صورتحال کے آبادی کے مختلف حصوں پہ مختلف اثرات بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج سے پہلے بات کریں گے نشے کی عادت میں مبتلا افراد کی، جن کی بحالی کی کوششیں کرونا وائرس کی نظر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 11 سرکاری مراکز ہیں نشے کی عادت میں مبتلا افراد کے لیے، لیکن ان دنوں ان مراکز کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی وجہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے نظر الاسلام کی رپورٹ۔ بائیس سالہ عبدالاحد آج ایک کامیاب میکینک ہیں۔ وہ موٹر انجن کھولنے، ٹھیک کرنے اور اسے اصل حالت میں واپس لانے کے ماہر ہیں، لیکن کچھ عرصہ قبل تک وہ منشیات کے عادی تھے۔ عبدالاحد کے مطابق 7 سالوں میں انہوں نے لاکھوں روپے اس لت کی نظر کر دیے، لیکن پھر خیبر پختونخوا کے محکمہ سماجی بہبود کی جانب سے قائم علاج و بحالی سینٹر نے ان کی کایا پلٹ دی۔ پہلے تو رویہ لوگ ہم سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن آتا جاتا بھی نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتا ہے یہ نشے، یہ ڈرگس کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اتنا تبدیلی آ رہا ہے، ہم گھر والوں کے سامنے سب مکمل بیٹھتا جاتا ہے، سوتا ہے، لیکن چکر بھی مارتا ہے، سب کچھ گھر والے ہم سے بڑی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ عبدالاحد کے رشتہ دار بھی انہیں صحت مند اور کام میں مشغول دیکھ کر خوش ہیں۔ ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمیں اپنا بیٹا واپس مل گیا ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ اس کی شادی کر رہے ہیں، اور کام کے بارے میں یہ اپنا ورکشاپ آ رہا ہے، کنٹینیو آ رہا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی کئی اضلاع میں نشے کی لت میں مبتلا افراد کے علاج اور بحالی کے لیے سرکاری مراکز موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو لوگ آئے ہوئے ہیں اس میں 90% لوگ جو ہے وہ سکسیسفلی اور ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور اپنی سکسیسفل لائف وہ گزار رہے ہیں۔ ابھی اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، انجینئرز ہیں اور دوسرے ورکرز بھی ہیں۔ پشاور کا یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے سے انتظامیہ نے عارضی طور پر بند کر کے آئسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس بندش سے نشے میں مبتلا مریض دوبارہ اس لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ علاج کے لیے لائے گئے تمام افراد کو ان کے گھروں کو واپس منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس تمام مریضوں کا مکمل ڈیٹا ہے اور ہم اس کے فیملیز کے ساتھ مسلسل رابطے میں۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم سرنوں سے ان لوگوں کی بحالی شروع کریں گے۔ بحالی سینٹر سے نامکمل علاج کے ساتھ گھر بھیجے جانے والے افراد کی ذمہ داری ایک بار پھر ان کے خاندان والوں پر پڑ گئی ہے۔ سینٹرز تو کچھ عرصے بعد شاید دوبارہ کھل جائیں، لیکن کتنے مریض علاج کے لیے واپس بھی جائیں گے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ لاک ڈاؤن کے دوران پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں غریب اور نادار افراد تک راشن پہنچانے کی تو کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کراچی کی ایک سماجی تنظیم کی کوشش یہ ہے کہ مذہبی اقلیتوں تک بھی ضروری سامان پہنچ سکے، کیونکہ رضاکاروں کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر راشن کی تقسیم کے دوران غیر مسلم افراد پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جو کمیونٹیز ہم لوگ ابھی ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ نان مسلم کمیونٹی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ان کمیونٹیز کو بہت کم لوگ ٹچ کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ نگلیکٹ ہوئی ہوئی ہے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگ اراؤنڈ 200 فیملیز ریچ کر چکے ہیں۔ میرا نام سید فہد علی ہے اور میرا تعلق پاکستان یوتھ فورم ویلفیئر ٹرسٹ سے ہے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں جو طبقہ، وہ ڈیلی ویجز کا ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روز کو کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں۔ جو ضروریات ہوتی ہیں ایک گھر کے اندر، وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کوشش کی ہیں مہیا کرنے کی۔ جو ہم لوگوں نے راشن پیک بنایا ہے یہ 5 to 6 فیملی کے لیے 15 to 18 ڈیز کے لیے۔
मोस्टली हम लोगों को ओवरसीज़ रकम ही देते हैं, ठीक है, वो फिर हम लोग डिफरेंट मार्केट से ऑर्डर प्लेस करके राशन पैक बनवाते हैं और वो फिर हम लोग इन लोगों को देते हैं। सबसे बड़ा मसला लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। इवन अगर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है तो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। कितना ही हम लोग कह लें, कितनी ही हम लोग कोशिश कर लें, तो उससे होता ये है कि ना सिर्फ उनके लिए एक कंटेजियस बीमारी लगने का खदशा बढ़ जाता है, बल्कि हमारे लिए भी ये बड़ी ख़तरे की घंटी हमारे लिए भी बजने लगती है। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, भले से वो मस्जिद हैं, भले से वो मंदिर है, भले से वो चर्च है, ये वो जगह होती हैं जहाँ के जो ओहदेदार होते हैं, इन लोगों को अच्छे से पता होता है कि किस फैमिली में कितने लोग हैं और किस तरह की उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है। तो बेहतर ये कि बजाय इसके कि हम लोग रोडों के ऊपर बांटें या गली मोहल्ले में रश लगा के करें, बेहतर ये कि हम लोग जो रिलीजियस जगह हैं, जो कम्युनिटी सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पे हम लोग जाके करें, तो उससे एक तो रश भी नहीं लगेगा और हम लोग को जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं वो आप बेहतर तरीके से उनको रीच कर सकते हैं। इससे फ़ायदा हम लोगों को ये हुआ कि हम लोगों को अच्छे से पता चल गया कि जो फैमिलीज़ हैं वो हर फैमिली में एक ही राशन गया है। इंतज़ामिया को इन्वॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि उनको अच्छे से पता होता है कि कौन सी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और एक घर में कितनी फैमिलीज रहती हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक हमारा यही है कि जो फैमिलीज हम लोगों ने अब कर दिया, अब इनको 15 to 18 डेज़ बाद हम लोग फिर दोबारा राशन देंगे। ये ना हो कि वन टाइम देके हम लोग इनको भूल जाएं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर लॉकडाउन इंक्रीज होता है या एक्सटेंड होता है तो फिर इन फैमिलीज़ को देखना हम लोगों की ही जिम्मेदारी होगी। दुनिया भर में ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं बुजुर्ग अफराद। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके बीमार होने का इम्कान ज्यादा है, बल्कि इसलिए भी कि बहुत से बुजुर्ग जो घरों में महसूर हैं, उनके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जरूरत का सामान उन तक पहुंचा सके। लेकिन इस सूरत हाल में तंजीमों के साथ साथ दोस्त, अहबाब और हमसाए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं अमेरिका में होने वाली ऐसी ही कुछ कोशिशें। डोना एज़ॉन एक 78 साल रिटायर्ड उस्ताद हैं। वो कोरोना वायरस से बचने की खातिर घर पर रहने वाली अपनी दोस्त फेलिस किंग को ग्रोसरीज पहुंचाती हैं। फेलिस किंग कपड़े सीने का काम करती हैं। Oh, hi, Donna. How you doing? Is this for me? Yeah, that's for you. Oh, thank you. That's so kind of you. Times like these. ये हालात खास तौर पर मेरे जैसे बूढ़े लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकलीफदेह हैं। खुशकिस्मती से मेरी सेहत अभी अच्छी है और मैं थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हूँ जब तक उनकी। डोना और 75 साल फेलिस किंग दोस्त हैं। फेलिस किंग कहती हैं कि जब से ये वायरस फैला है उनके ग्राहकों ने आना तो छोड़ दिया है, लेकिन उनमें से कई उन्हें फोन करके उनका हाल पूछते हैं। They're business acquaintances. उनसे कारोबारी ताल्लुकात हैं, वो मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा पूछा और मेरा कोई भी काम करने को तैयार हैं। मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। फार्मेसी पर जाना हो, सुपरमार्केट जाना हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लोग बहुत मददगार साबित हुए हैं। Wonderful. वाशिंगटन से मुंसलिक मैरीलैंड के शहर में एक रोटरी क्लब के सरबराह भी इन बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए हैं। I wanted to help out the elderly. मैं बूढ़ों की मदद करना चाहता था। मेरे क्लब में मुतादिद बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 साल और इससे भी ज्यादा है। लिहाजा मैंने सभी से कहा कि अगर किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दें और मैं आपकी मदद करूंगा। फेलिस किंग जैसे बुजुर्ग किसी भी मदद का खैर मकदम करते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें जो ताउन और मदद मिली है, इससे उन्हें वो किस्से याद आते हैं जो उन्हें दूसरी जंग अजीम के दौरान लोगों की आए गए थे। During the Second World War, दूसरी आलमी जंग के दौरान लोग इकट्ठे हुए क्योंकि हालात बहुत ख़राब थे। मुझे यकीन है कि ये एक और जंग है जो हम लड़ रहे हैं। लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक दूसरे की मदद करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए ही हम इस पर काबू पाएंगे। through that, we will overcome. वेंचिंग चाओ के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में इस वक्त आवाम की मदद के लिए हुकूमतें बहुत बड़े बड़े माशी पैकेजेस मुतारिफ करा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की भी हिकमतें मुख्तलिफ है। जर्मनी और फ्रांस में हुकूमतें कारोबारों को पैसा दे रही हैं ताकि वो मुलाजमों को फारिग ना करें, जबकि अमेरिका में उन लोगों की मदद पे हुकूमत तवज्जो दे रही है जो ऑलरेडी नौकरी से निकाले जा चुके हैं। और रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह पाकिस्तान में बहुत से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हुकूमती वादों के बावजूद इमदाद उन तक अभी नहीं पहुंची, कुछ ऐसा ही शिकवा अमरीकी भी कर रहे हैं। अमेरिका में बेरोजगारी की शरह में बहुत तेजी से इजाफा हुआ जब कोरोना वायरस से बचाव के पेश नज़र 1 करोड़ के लगभग मुलाजिमीन को घर भेज दिया गया, जबकि लाखों ने बेरोजगारी फंड के लिए दरख्वास्तें दायर की।
मुझे अभी तक बेरोजगारी का इमदादी चेक नहीं मिला क्योंकि इस निज़ाम पर बहुत बोझ है। अगर आप फ़ोन करें तो वो आपकी लाइन काट देते हैं। इस आलमी वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया भर में लगाई गई मुआशी पाबंदियों ने बहुत से कारोबारों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। कई यूरोपीय हुकूमतें घर बैठे मुलाजिमीन को आमदन फराहम करने के लिए उनकी कंपनियों को माली मदद फराहम कर रही हैं ताकि सेहत आमा के इस बहरान के दौरान मईशत को सहारा दिया जा सके। ऐसा करना इन मुलाजमीन की सेहत को महफूज रखने के अलावा यकीन दहानी भी है कि इस बहरान के ख़त्म होने के बाद वो अपनी मुलाजमतों पर वापस जा सकेंगे। ताहम अमरीका में ज़्यादातर मुलाजिमीन को मुलाजिमत ख़त्म होने के बाद ही इमदाद दी जाती है, जबकि गैर कानूनी तारिकीन वतन जैसे कई ग्रुप्स बेरोजगारी इमदाद के अहल नहीं हैं। मुतवसत आमदन के हामिल अमरीकियों को हुकूमत की तरफ से $1200 के चेक भेजे जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में अगले इमदादी पैकेज के लिए बातचीत जारी है। अमरीकी हुकूमत का एक प्रोग्राम मुलाजिमीन का रोजगार बचाने से मुतालिक है, जिसके तहत छोटे कारोबार अगर कोरोना शटडाउन के दौरान अपने मुलाजिमीन को बरकरार रखें तो हुकूमत की तरफ से इमदादी कर्ज वापस लौटाने से मुस्तस्ना होंगे। ये सब इतना पेचीदा शायद इसलिए भी है कि हुकूमत इन कारोबारों को इस हद तक माली फायदे नहीं देना चाहती कि हालात सही होने के बाद वो नॉर्मल तरीके से काम करने पर राजी ना हों। कई रियासतों में नेशनल गार्ड ऐसे अफराद में अशाए खुर्दनोश तकसीम कर रहे हैं जो हुकूमती इमदाद मिलने तक बुनियादी ज़रूरतें खरीदने से भी कासिर हैं। मैं नहीं जानती कि हम अगले माह का किराया और बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे। हुकूमती इमदाद की राह में हायल इंतजामी रुकावटों के खात्मे के बाद बेरोजगार अमरीकियों की कुछ अरसे के लिए मदद तो हो सकेगी, लेकिन मुआशी बहाली में सुस्त रवि के खदशात बहुत से अफराद को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कोरोना बहरान के खात्मे के बाद क्या वो अपनी पुरानी मुलाजिमतों पर वापस लौट सकेंगे। ब्रायन पैडन के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प कंटेंट के लिए जब चाहें आप लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी @urduvoa को फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारा दिलचस्प कंटेंट मिलेगा। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी फासला कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक मौसर हथियार साबित हो रहा है। इसका एक साइन तो अब ये मिला है कि लोगों का दर्जा हरारत, जो कि बीमारी की अलामत होता है, उन अमेरिकी शहरों में कम हो रहा है जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल पे अमल किया जा रहा है। एक स्मार्ट थर्मोमीटर कंपनी इससे मुतालिक डेटा जमा कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंटरनेट से मुंसलिक एक स्मार्ट थर्मोमीटर ऐसी चीज की तरह नहीं लगता जो कोविड-19 के खिलाफ जंग में मदद दे सके। ऐसे स्मार्ट थर्मोमीटर से सारिफ का दर्जा हरारत एक डेटाबेस पर अपलोड किया जाता है जहां थर्मोमीटर कंपनी बुखार को ट्रैक करती है। लेकिन इसी तरह का आला तैयार करने वाली कंपनी किंसा हेल्थ के चीफ एग्जीक्यूटिव इंदर सिंह ने हाल ही में सार्फिन के बुखार के अदाद-ओ-शुमार और उन जगहों पर निगाह डाली जहां समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। और ये बात वाज़ेह है कि जब आप समाजी फासले पर सख्ती से अमल दरामद कराते हैं, जैसे एक घर पर रहना या जहां पहले से मौजूद हों वहीं रहना, यहां तक कि बार और रेस्टोरेंट की बंदिश, 3 दिन से 7 दिन के अंदर ही आपको बुखार की सतह में कमी नजर आने लगती है। इसकी वजह यह है कि समाजी फासले पर अमल दरामद से हम इन्फेक्शंस का सिलसिला तोड़ रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 20 लाख अफराद रोजाना अपना बुखार चेक करने के लिए किंसा थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। अगरचे कंपनी की पेशगोइयों का दूसरे माहिरीन ने जायजा नहीं लिया है, ताहम किंसा का कहना है कि इसके डेटा से अमेरिका में गैर मामूली बुखार के अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालने का एक मौका मिलता है। मार्च के वस्त में कंपनी के अदाद-ओ-शुमार ने फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में लोगों में बुखार की बड़ी तादाद देखी। इंदर सिंह का कहना है कि किंसा ये यकीन से नहीं कह सकती कि ये कोविड केसेस थे, लेकिन ये एक अहम इशारा है। ये एक तरह से एक बल्ब जल उठने की मानद है। ये कह रहा है, अरे वहाँ एक वबा फैल गई है, यहाँ भी एक वबा फैली हुई है, आओ इसको देखें। वायरोलॉजिस्ट को भेजें, टेस्ट किट्स भेजें।
इंदर सिंह का कहना है कि उनकी अदाद शुमार से पता चलता है कि कुछ जगहों पर बुखार के केसेस की तादाद कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आम सतह से कहीं ज्यादा है। ये एक बड़े मसले की तरफ इशारा कर सकता है। So the worry is that there are small groups of people. परेशानी की बात यह है कि लोगों के छोटे छोटे ग्रोह हैं या छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं जहां वायरस एक दूसरे में मुंतकिल हो रहा है। ये वायरस के ज़खायर के तौर पर काम कर सकता है। ये कोविड-19 के छुपने की जगह हो सकती है, और जब हम अपनी समाजी दूरी की सरगर्मियों में नरमी करेंगे तो ये फिर से फैलना शुरू हो जाएगा। इसकी पेशगोई करने के लिए एक रेस चल रही है कि वायरस कहां फैल रहा है, कौन से इक़दाम काम कर रहे हैं और कब माशरती और समाजी सरगर्मियों को दोबारा खोलना महफूज होगा। स्मार्ट थर्मोमीटर के जरिए इकट्ठा किया गया लोगों के बुखार का डेटा सेहत के एहलकारों के लिए एक सिग्नल हो सकता है, जो ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। मिशेल क्विन के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल हम सभी अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां देख रहे हैं। अपने प्यारों से दूरी, रोजगार की फिक्र, घर वालों की सेहत की फिक्र, जहन में बहुत से ऐसे सवालात गर्दिश कर रहे हैं जिनके जवाब शायद हमारे पास नहीं है, और ऐसे में जहनी दबाव और टेंशन बढ़ती ही है। तो इस सूरत हाल पे काबू कैसे पाया जा सकता है, खुद को हम काम सकते हैं, इस बारे में आइए देखते हैं कुछ माहिरीन की राय। जब सौदे सल्फ के स्टोर्स में शेल्फें खाली होने लगी तो ये पहली निशानी थी कि कोरोना वायरस अमेरिका में फैल रहा है। लोगों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अशियाए खुर्दोनोश जमा करनी शुरू कर दी। जब लोगों को मुश्किल सूरत हाल से निमटने के निज़ाम पर बोझ पड़ता है तो वो गैर यकीनी की कैफियत से बचने के लिए इक़दामात उठाने लगते हैं। केन कहते हैं कि दबाव से निमटने के बेहतर तरीके मौजूद हैं। कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीकों की मदद से वो अपने खानदान वालों से बातचीत करके और ये जान कर कि वो घर पर महफूज हैं, अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। वीडियो चैट के जरिए वो खानदान के अफराद और दोस्तों को देख सकते हैं, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो, या फिर वर्जिश कर सकते हैं। तो हमें मालूम है कि ये हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे ज़बरदस्त तहकीकी सबूत मौजूद हैं जिनके मुताबिक जिस्मानी मुशक्कत, बेचैनी और जहनी इज़्तिराब के इलाज के लिए सूदमंद है। अहम चीज़ अपने सामने कोई मकसद रखना है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। लोगों को अपनी कुछ कामयाबियां जहन में रखनी चाहिए, ऐसे काम जो मुकम्मल किए गए, ताकि हम खुद से कह सकें ये देखें मैंने ये किया है, क्योंकि इससे बेचैनी कम करने में मदद मिलती है। अगर हम पीछे मुड़कर ये देखें कि हमने कैसे दूसरे चैलेंजेस को अबूर किया तो इससे भी मदद मिलती है। हम सब लोग तभी ज्यादा फलते फूलते हैं जब हम अपने आरामदेह मामूल से बाहर निकलकर काम करते हैं, और यकीनन ये वो वक्त है जब हम में से ज्यादातर लोग खुद को अपने मामूल के कंफर्ट जोन से बाहर पा रहे हैं। और हंसना मत भूलें। Doses of humor are good for us. मज़ा हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारी जहनी केमिस्ट्री मुतहर्रिक होती है और कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। मज़ा अच्छी तजुर्बा किसी के साथ शेयर करने से आप कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाते हैं। कैरल पेसन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। चलें इधर इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आजकल लोग अपना बहुत सा वक्त फिल्में देखते गुजार रहे हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है? टॉपिक है वबाएं, ऐसे वायरसेस जो शहर में तबाही मचा देते हैं। लेकिन वजह क्या है? कोरोना वायरस के दौरान लोगों को ऐसी फिल्में देखने का पहले से भी ज्यादा शौक क्यों हो रहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका ने यही जानने की कोशिश की है।
ये कोरोना वायरस की कोई किस्त नहीं है। ये 1995 में वुल्फगैंग पीटरसन की बनाई सनसनीखेज फिल्म आउटब्रेक का एक मंजर है, जो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 10 फिल्मों में से एक है। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान नई फिल्मों के बनाने का काम एकदम रुक गया है और फिर सिनेमा हॉल्स भी आर्जी तौर पर बंद पड़े हैं। ऐसे में आउटब्रेक जैसी फिल्मों को ऑनलाइन देखने में लोगों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ है। The most optimistic projection for the spread of the virus is this: 24 hours, 36 hours, 48 hours. ये उन बहुत सी फिल्मों में से एक है जो रोजे हशर की मंजरकशी करती है। ये उस माहौल की अक्कास है जब लोग खौफजदा होकर अपने आप को घरों में बंद कर लेते हैं ताकि वायरस एक से दूसरे को मुंतकिल न हो सके। मगर कोरोना वायरस की वबा के दौरान नाजरीन ऐसी फिल्में क्यों देख रहे हैं? एक माहिर नफ्सियात कहती है कि रोजे हशर के मनासिर पेश करने वाली फिल्मों में एक मुस्बत नतीजे से लोगों को राहत मिलती है। escapism, right? This idea. ये फरार हासिल करना है। हम अपनी हकीकतों से निकलकर 2 घंटे के लिए इस स्क्रीन को देखते हुए इस कहानी में गुम हो जाते हैं। इन सनसनीखेज फिल्मों के देखने में एक ऐसा जोश और हिजान है जो हमारे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा देता है। और फिर जो मुझे समझ आती है कि सनसनी के बाद एक खूबसूरत मोड़ आता है और हमेशा एक अच्छा इख्तिताम होता है। Almost always this reparation. फिल्मों की माहिर सिंथिया फुश कहती हैं कि रोजे हशर की मंजरकशी करने वाली फिल्में जैसे स्टीवन सोडरबर्ग की 2011 में बनने वाली कंटेजन, जो आलमी सतह पर फैलने वाले जानलेवा वायरस से मुतालिक है, नाजरीन में यकजहती के एहसास को उजागर करती है, जो देखते हैं कि कैसे साइंसदान इंसानों को बचाने के लिए वक्त से मुकाबला कर रहे हैं। इकट्ठे मिलकर काम करने का एहसास होना चाहिए। एक रब का एहसास होना जरूरी है। एक तरह से हिकमत अमली के साथ मनसूबाबंदी के तहत काम करने का एहसास, जो कि शायद हमारी हकीकी जिंदगियों में गायब है। सिंथिया कहती है कि आलमी वबा की मंजरकशी करने वाली ऐसी बहुत सी फिल्में एक ऐसा मंजर पेश करती है जो कि इस तजुर्बे से कहीं बदतर है जिससे अभी हम गुजर रहे हैं। इससे नाजरीन को एक तस्कीन मिलती है कि वो ऐसी तकलीफदा सूरत हाल से नहीं गुजर रहे हैं जिससे फिल्म के हीरोज गुजरते हैं। सन 1919 में बनने वाली फिल्म द प्लेग ऑफ फ्लोरेंस, जो कि स्पेनिश फ्लू नामी वबा के तनाजुर में बनी थी, एक खामोश फिल्म है जिससे पता चलता है कि 20वीं सदी के आगाज से ही लोगों को इस तरह की फिल्मों में दिलचस्पी थी। It's easier to see it on this big screen. इससे मुतालिक अपने डर और खौफ का सामना करने से कहीं आसान इसको बड़ी स्क्रीन पर देखना है। वो कहती है कि गैर यकीनी हालात में जब लोग बेचैनी और बेयारो मददगार होने की कैफियत से गुजरते हैं तो वो जज्बात से ज्यादा मखलूब हो सकते हैं, जो कि उनकी बेचैनी में मजीद इजाफा कर सकता है। ताहम उनके इस्तराब को दूर करने का एक तरीका भी हो सकता है, जैसे कि कोई डरोना ख्वाब देखना। आप इससे जाग जाते हैं, आप फिल्म के इख्तिताम तक पहुँचते हैं और फिर कुछ अच्छा हो जाता है। पेनेलोपी पाउलो के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। आजकल इंसान घरों में कैद हैं तो बहुत सी जगहों पे उन जानवरों को भी अब शहरी आबादियों में घूमने फिरने का मौका मिल गया है जो आम तौर पे ऐसा करने से डरते हैं। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में जंगली बंदर कम ट्रैफिक का फायदा उठाते हुए खाली सड़कों पर उछलते कूदते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में आवारा कुत्तों को बहुत मुश्किल हो रही है। आमतौर पे तो आवारा कुत्ते और बिल्लियां दुकानों के आसपास खुराक तलाश कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों दुकानें बंद हैं तो उन्हें भी खाना नहीं मिल रहा। इन हालात में कराची के एक फोटोग्राफर अली खुर्शीद और उनकी अहलिया नूर चंद इलाकों में आवारा कुत्तों के लिए खुराक फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आवारा कुत्ते खुराक के लिए रेस्टोरेंट्स के बचे कुचे खानों पर इन्हिसार करते हैं। अब चूंकि तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हैं तो मैं अपने इलाके में दोस्तों की मदद से उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के कुछ मुल्कों में इस वक्त जानवरों की अडॉप्शन पहले से ज्यादा हो रही है। उस मौजू पे हम आपके लिए रिपोर्ट लेके आएंगे। आने वाले प्रोग्राम्स में सोशल मीडिया के जरिए हमारा और आपका राब्ता कायम रहता है 24 घंटे, तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिए। सारा ज़मान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।